السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وہیں پہ حضرت محمد رحمت اللہ خاصی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام مسئولین اکرام اور فقراء اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت پیر مرشد ضیاء ملت مولانا ابو ریحان سید مکی اللہ ذاکر منوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ تعزیت ایسا دکھ رہا ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے جو ہے حضرت کا وصال ہوا ہے، ایک دم جو ہے 40 دن کی آ گئے۔ محترم حضرات، یہ فقیر جو ہے آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں رہے گا کیونکہ بڑی فہرست ہے مقررین کی۔ عقیدتاً میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت کے تعلق سے کہنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری قوم میں مرشدین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج جہاں جہاں مرشدین ہیں وہاں مہدویت باقی ہے، اور جہاں جہاں مرشدین نہیں ہیں ہم سن رہے ہیں کہ فلاں یہ ہو گئے، فلاں یہ ہو گئے۔ میں اس کو جو ہے اور کھول کے بیان نہیں کرنا چاہتا، اشارتاً بات کافی ہے۔ دیکھیے، میلے میں ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے اور ایک باپ جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو 4-5 سال کا ہے ساتھ لے جاتا ہے، مجمع زیادہ ہے، میلہ ہے، ایگزیبیشن ہے، مگر جو بچے کو چوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سا بچہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا، اس کو ہم جو ہے اٹھا لیں گے، اس کو ہم پکڑ لیں گے، غائب کر دیں گے۔ مگر جو بچہ اپنے باپ کے ہاتھ کو تھامے رہتا، چور جو ہے جرات نہیں کرتا کہ اس بچے کو جو ہے چرا سکے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اپنے مرشدین کے دامن کو اپنے باپ کے ہاتھ کی طرح تھامے رہے ہیں، ان کی محنت آپ بھی برقرار۔ محترم حضرات، مرشدین ہمارے قوم میں جو ہے ایک ایسا رول ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، رونا آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایسی چمک دمک دنیا میں جہاں سے لوگ واپس آنا نہیں چاہتے، لیکن آج کے دور میں ابھی بھی مرشدین ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو دن رات خدا کی یاد میں جو ہے پہلے جس طریقے سے ہم سنتے تھے، بزرگان قوم اللہ کے لیے سب کچھ سب کر چکے تھے، آج بھی ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ کوئی فلم کو جا سکتے، نہ کہیں اور گھومنے جا سکتے، دن رات گھر میں۔ دیکھیے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، مگر جو قربانی آج ہمارے مرشدین دے رہے ہیں، دنیا کا کوئی عالم یا مفتی یا چشتی کوئی نہیں دے سکتا یہ قربانی۔ ہم کو قدر کرنی چاہیے مرشدین کی۔ جتنا ہم ان کے جو ہے قریب ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے، آپ کو اتنا ثواب ملے گا اور اتنا ہی آپ کی جو ہے معرفت میں اضافہ ہوتے جائے گا۔ مرشدین کی خدمت کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آج ہماری قوم میں ایک ایسے مرشد جو ہے ہم سے جدا ہو گئے، ایک ایسا خلا ہمیں درمیان میں پیدا ہو گیا ہے، وہ پر ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایسی ایسی صلاحیت تھی، ایسی ایسی خوبیاں تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ نہ صرف ایک مسجد بلکہ کئی مسجدوں کو آپ جو ہے زیر نگرانی میں رکھ کر خوبی سے سنبھالتے تھے۔ دیکھیے، ایک ایک جو ہے چھوٹے چھوٹی مسجدوں کے مسائل کو ہم سن رہے ہیں تو تعجب کر رہے ہیں، مگر پیر و مرشد ضیاء ملت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خوبی رکھی تھی کہ وہ ایک تو نہیں، کئی جو ہے مساجد اور کئی جو ہے مرشدین، کئی جو ہے فقراء کو لے کر وہ ایسا چلتے تھے کہ جس طریقے سے بھائی ہے، جس طرح انہی کے مسجد کے خلیفہ ہے۔ خالی ایک چنچروڑے کی بات نہیں ہے، جو ہے چاہے وہ جو ہے بابا نگر ہو، کرنول یا کپا ہو، کہیں کا بھی جو ہے معاملہ
है उसको निभाते थे और नेस्ती का ये आलम था। एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए कई बातों में से एक बात आपको बता रहा हूं चूंकि वक्त नहीं है। एक मरतबा मैं मुशीराबाद में हजरत शाह कासिम मुश्तदर रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए जो है गया, वापिस हो रहा था तो पता नहीं वो दो कौन लोग थे। पीर और मुर्शिद को जो है यहाँ हमारे हसीनिया साहब मौजूद है, पीर और मुर्शिद को हसीरे की जो है वो दरवाजे की जो है अंदर आते ही अल्लाह फला इतना बुरा भला कहने लगे। याद रखिए कोई और होते तो कुछ तो बोलते, मगर पीर और मुर्शिद जिया मिल्लत सर झुका हुए खड़े हुए सुनते रहे। मैं देखता रहा कि आज भी कोई इंसान ऐसा दुनिया में फिर पीर और मुर्शिद होकर ऐसी ऐसी बातें सुनकर खामोश सुनते रहे। भला बताइए आज दुनिया में ऐसा कोई इंसान है? क्या नेस्ती का आलम है, क्या नेस्ती का आलम है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती, याद रखिए। और फिर इसके अलावा खाली अखलाकी तौर पर नहीं, हम छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, हम खाली दूर से आए तो इतनी मोहब्बत से आवाज में इसी मिठास थी। क्या है सूफी साहब, बोलिए आपको क्या होना है? अच्छी बात है हम ये कर देंगे, अच्छी बात है आप ये बोले हम ऐसा कर देंगे। देखिए, और इसके अलावा भी जो है एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ के पीर मुर्शिद से मिलने के लिए आया। अब मिसाल के तौर पे 6 बजे मगरिब की नमाज हो गई और 8:15 बजे ईशा की नमाज है। मैं इंतजार करता रहा, हजरत पीर और मुर्शिद ईशा की नमाज तक बैठे हुए रहे, असर से लेके ईशा तक फिक्र में रहे। ऐसी चीजें जो हमको किताबों में मिलती थी वो आपके पास यहाँ हमको देखने में मिली है। रात में बाद वक्त कई वक्त जो है कई लोगों ने कहा कि आप रात में भी इबादत करते थे, तहज्जुद की नमाज में उठ के आप इबादत करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीच ऐसे मुर्शिदीन आज भी मौजूद है। हजरत जितना हो सके इनके करीब हो, उनके दामन को थाम ले, उनकी खिदमत करे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और फिर एक बात बताकर मैं अपनी जगह लूंगा। देखिए कि जिस तरह सूरह बनी इस्राइल में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है कि उस दिन यानी महशर के दिन हम सबको अपने अपने इमामों के साथ बुलाएंगे। अब जिसका मुर्शिद नहीं है वो कहां जाएगा, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन याद रखिए कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को हम अपना इमाम मानते हैं। अब उन तक पहुंचने का अगर कोई जरिया है तो वो हमारे मुर्शिद इकराम। और हमारी जो जिंदगी की, हमारी इबादतों की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है खुदा का दीदार, उस खुदा के दीदार की जो मनाजिल है उसकी पहली मंजिल मुर्शिद इकराम। और मैं यूं ही अपनी तरफ से अकीदत से नहीं बयान कर रहा हूं। हजरत बंदगी मियां शाह नुसरत मखसूस जमान रहमतुल्लाह अलैह के उस वाकये को मैं हमेशा याद रखता हूं कि एक मर्तबा जब सफर में हजरत नूर मोहम्मद खातिम कार रहमतुल्लाह अलैह के साथ आप भी जा रहे थे तो ठंडा पानी हजरत को पसंद आया, अपने मुर्शिद की खिदमत में पेश करे तो नूर मोहम्मद खातिम कार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बहुत ठंडा पानी है, दिल को ठंडक पहुंच गई। तो अब आप देखिए शाह नुसरत मखसूस जमान रहमतुल्लाह अलैह इलाका लगाए हैं मामू से, अब जो है वो पानी धीरे धीरे खत्म हो गया, 4 कोस काफिला आगे बढ़ गया। जब पानी खत्म हो गया उसके बाद जब फिर हजरत नूर मोहम्मद खातिम कार रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से पानी मांगा तो फिर वही पानी मिला। तो हजरत नूर मोहम्मद खातिम कार रहमतुल्लाह अलैह ये पूछते हैं क्योंकि पानी जब आखिरी बार किया था पानी खत्म हो चुका था, फिर वही पानी यहाँ पर मिला है। पूछा कि ये पानी कहाँ से लाए हो? हजरत शाह नुसरत मखसूस जमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, फिर वहीं से पानी लाया जहां का पानी आपको पसंद आया। तो अब आप देखिए ये हुआ था, इसके बदले में क्या मिला? मुर्शिद ने दुआ दी, जिस तरीके से जो है तूने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई है, अल्लाह तबारक तआला तुझे अपना दीदार कराकर तुझे ठंडक पहुंचाएगा। अब हुआ क्या देखिए कि हजरत शाह नुसरत मखसूस जमान रहमतुल्लाह अलैह को उसी रात ख्वाब पड़ता है। ख्वाब में आपने देखा कि अपने मुर्शिद जो है बाग में खड़े हैं और जवान है, उनके चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना है और पसीने की रौनक ऐसी है जैसा सूरज है। अब वो ख्वाब देखकर आप दूसरे रोज अपने मुर्शिद को आकर सुनाते हैं कि सरकार मैंने ख्वाब में आपको
को देखा है और इस तरीके से बाद में आप जो है टहल रहे हैं, मगर चेहरे पर जो पसीना है वो सूरज की तरह चमक रहा है। और उसके बाद कहते हैं शाह नुसरत मुक़द्दमा के मगर मैंने एक अजीब चीज देखी कि आप उसमें जो है जवान हैं। तो हजरत नूर मोहम्मद खातिम कार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नुसरत जी, क्या खुदा बूढ़ा होता है? एक ही जुमला में कितनी बातें हैं। देखिए, आप ये बता रहे थे कि अपने मुर्शिद की शक्ल में उन्होंने अपने खुदा को देख लिया है। तो ये फकीर का ईमान है, यकीन है कि पीर मुर्शिदीन हमारे लिए दीदार खुदा की मनाजिल में पहली मंजिल होते हैं। उनकी जितनी चाहे आप खिदमत करें, उनका जितना चाहे ख्याल रखे, तो याद रखिए आपकी दोनों जहां बन सकते हैं। और मैं जो है अल्लाह से दुआ करते हुए मैं अपनी जगह लूंगा और हजरत फसी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो है एक दरखास्त भी करूंगा। पहले तो ये कि हजरत के जो काम थे उसको आप जारी रखे, जिस तरीके से वो लोगों की खिदमत करते थे। हम सुनते हैं लोग बोलते भाई मुर्शिदीन को जो है पैसे बहुत आ रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह। देखिए, इस फकीर जो है ने अपने आंखों से देखा है कई मुर्शिदीन को अपने गरीब फुकरा और अपने गरीब मुरीदैन को खुद अपने हाथों से छुपा छुपा कर देते हो। पीरो मुर्शिद के भी मैं ऐसे मुरीदन को जानता हूं जो महीने में आकर लेते थे। मोहतरम हजरत, देखिए पीरो मुर्शिद की जो है ख्वाहिश पे ये पत्थर लगाया गया। ये पत्थर की जो शुरुआत हुई यहां पर पीरो मुर्शिद ने इसको पसंद किया था। तो आप इस पत्थर से भी मोहब्बत रखें, क्योंकि ये पत्थर पीरो मुर्शिद के पसंद का। तो आपकी अकीदत और बढ़ते जाएगी। मैं जो है फसी मियां साहब से जो है दरखास्त करता हूं कि जिस तरीके से आपके वालिद बुजुर्गार, आपके मुर्शिद लोगों के दिलों में जगह बनाते थे, लोगों का ख्याल रखते थे, कौम और उम्मत का ख्याल रखते थे, आप इस मिशन को जारी रखें, इसको आगे बढ़ाए। मोहतरम हजरत, और एक बात मैं जो है बताकर अपनी जगह लूंगा कि कौम और मिल्लत के अंदर हजरत ने बहुत काम किया। मियाँ की जो खूबी थी उस खूबी को देखते हुए हम जो है परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जो दीदार को अता फरमाएगा उसके छींटे हम पर भी थोड़े बरसा दे, हमको भी उसका जो है अजर अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अल्लाह।